ਜਿਸਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਆ ਇਹ ਖੱਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ 1 ਮੀਲ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੱਡੇ ਖੱਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਖੱਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਰਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਾਸ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਆਪੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਐਡੇ ਪੱਥਰ ਪੁੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਥ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਣਾਇਆ ਸਬੂਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਪੁੱਥਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਯੂ ਗੋ ਆਫ ਦਾ ਪਾਥ, ਉਹ ਸਮੂਥ ਗ੍ਰਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਪੁੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਟ ਟਾਈਮਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਕਿ ਯੂ ਕਾਰਵ ਯੂਰ ਓਨ ਪਾਥ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਸ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਰਮਲ ਪਾਥ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੇਮ ਉਸ ਪਾਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗ੍ਰਾਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਵੋਇਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ these are little things which you have to apply in your own life। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਟਾਈਮਸ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੋਰੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੇਮ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਉਹਦੀ ਨਨਾਣ ਠੀਕ ਉਹਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਉਹਦਾ ਫਰਾਣਾ ਠੀਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ एग्जैक्टली सेम थिंग। उधर करो ना थोड़ा, मैं इधर बैठ जाऊं ताकि पता चले कि अबू हमें कुछ समझा रहे थे, हम समझ रहे थे, और मैं उन्ना ही लावांगी जिथे अबू थोड़ा मतलब कि कोई और गल्लां हो रही ने, जिन तुसी ग्रास दी एग्जांपल दी दी। ये ठीक नहीं है, फोन लगातार फ्लिकर कर रहा। ओके चलो हम सुनिए गल। हां जी इधर अबू से बना लेना था, मैं प्रोसेसिंग करता पे। हां नहीं ठीक है, सही है। I tell those my friends sometimes, you know, it happens, you know, you're not listening, you know, that I tell them, you know, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸਲੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਸਮਝਣ ਫੇਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ once they are grown up, all you can do is advise them, that's it, then it is up to them to take that advice or not, but you cannot force your decision on them। ਤੇ well, that is life, you have to take it as it comes। ਪਰ ਜੇ ਉਸਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਵਸੀਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਅੱਛਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ। Static to active, if you save say from £100 10%, £10 a month, you are limited to saving 10 only, and that is static. It's just static, it's just lying there not doing anything. But if those change your thinking from static thinking to active thinking, and what is active thinking? Those £10 you working, you get £100 example, and instead of saving those £10, chill your mind, think about it. Let me start some, not investment, but kind of a business thing. Investing somewhere, not saving. There's a difference between investing and saving. Investing. Start small. Do that. And with this thing was related, another thing I learned at the same time. Very, very important. It's the lesson I learned in the beginning. Start from where you already are and whatever you have. Whatever you have. That means, you know, instead of going out, reaching out beyond your reach, don't do that. Start whatever you have and see what use can I make of this thing to start my own. These two things, they really helped me to build up my business when I started. It's just a matter of changing your mind, where you want to go.
जो है ना सेविंग का, ये स्कूलों में ही सिखाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हम भी तो ये सही है। कहते हैं बच्चों को सेव करो, छोटे सेव बच्चों करो, को है ना। लिसन, देखें, बच्चा ठीक है, बच्चे बहुत जब बहुत छोटा बच्चा हो ना, बच्चा उसको ठीक है। हम्म, उसको थोड़ा सिखाना सही है, पर हम लोगों को भी शुरू से यही सिखाया गया है, बचाओ बचाओ बचाओ, कमेटी पालो बचाओ, कमेटी पालो बचाओ। वो मनी ग्रो नहीं होता, वो डी वैल्यू होगा। गोलियां सिर्फ लेकर रखा हुआ है, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। आपने अगर मनी रखा हुआ है बैंक में, या गद्दे के नीचे, या तकिए के नीचे, या वो अपने मनी बॉक्स में, या बच्चे ने किसी ने, वो ग्रो नहीं होगा, वो कम होता कम ही जाएगा। होता जा। जब तक आप उसको इन्वेस्ट ना करो, कहीं इन्वेस्टमेंट में लगा लो, या उसका बिजनेस स्टार्ट कर लो, वो ठीक नहीं है। एक अब वो है कि बंदा आप ना- अगर नौकरी करते हो तो उसमें से कुछ हिस्सा जो आपके खर्चे खुर्चे निकाल के, कुछ हिस्सा जो है ना, वो जो आपको लगता है आपने सेव करना चाहिए, उसको अगर सेव करना शुरू किया तो माइंड में ये रखो, ये सेव करके मैंने बिजनेस करना है, इतने महीने सेव करके मैंने कुछ स्टार्ट करना है, या मैंने इसको इन्वेस्ट करना है। अब वो कहते हैं कि जी मॉर्गेज पे घर लेने के बजाय ना, वो जो डिपॉजिट इकट्ठा किया है ना, बिजनेस में लगा दो या कहीं इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। तो wait, wait. वो मल्टीप्लाई बड़ी तेजी से होगा। वो जब मल्टीप्लाई होगा, That is the way to do it. कैश पे घर लो जाके, उसको किराए पे चढ़ाओ, वो मैंने देखी उसके थी ना, पैसे आएंगे, वो घर भी आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई। एग्जैक्टली ऐसे ही है। ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਛਿਲਕੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਛਿਲਕੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਵ ਦੈਟ ਸੋ ਵਾਟ ਯੂ ਡੂ ਇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਪਿਕ what is good for you and you discard what is not good for you ਉਹ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਜਿਸਲੇ ਕੇਲਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛਿਲਕਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ छिलका नहीं खा रहा। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੈ, ਹੈ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟਸ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਵਿਦ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਿਕ ਦ ਗੁੱਡ ਥਿੰग्स डिस्कार्ड द अदर वंस पूरी दुनिया में जाके हम रहे तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी होता है, यूके में भी होता है। मुकाबलेबाजी है ना, दे कॉपी, कंपटीशन, दे कॉपी, हाँ। ठीक है। अभी उधर चले जाओ साउथ हॉल, ठीक है, तो वहां पे एक बंदे ने स्टार्ट किया था वो छल्ली वाला, वो जो बना के मकई के डिफरेंट डिफरेंट, वो पूरी उस मेन स्ट्रीट भर गई, हर किसी ने खोला हुआ है, ठीक है। तो ये चलता है, ये जो कंपटीशन है ना वसीम, ये शुरू से इतने इतने बच्चों के दिमाग में डाला जाता है, फलाने दा बच्चा है ओदी फर्स्ट पोजीशन आई है, वो इन्ना मेहनती है, तू फिरदा रहंदा महल्ले सारा दिन, वे कदी नजर आया ओदा काम ही की किताबां से जिस इंसान ये को शुरू से सिखाया जाता है, नंबर स्कूलिंग से शुरू होती है ये चीज। मैं बताता हूँ आपको, जिस इंसान को ये समझ आ जाए और समझ आने के बाद उसके अंदर इतनी ताकत हो कि वो उसके ऊपर अमल कर सके कि मेरा कंपटीशन सिर्फ मेरे साथ है, मैं आज इधर हूँ, मैंने कल इससे ऊपर जाना है, मैं इधर पहुंच गया हूँ, मैंने इससे ऊपर जाना है, तो वो बंदा सक्सेसफुल हो सकता है। अगर वो किसी और को देखता रहेगा, वो किसी और को देखता रहेगा, वो डिस्करेज होता रहेगा। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ जिहाद जिसको कहते हैं, खुद के साथ वो अपनी नफ्स हो, अपनी जंग आप ही लड़नी। पर क्या है कि जब हम लोग स्कूल थे ना, मैं खैर हमें तो कहा जाता था, मैं और भी देखती थी कि पेरेंट्स क्या कहते थे, जिहड़ा क्लास विच सारा लायक बच्चा ना ओदे नाल दोस्ती करनी, कि पढ़ने लिखने वालों के तमीज, कोई ये नहीं था कहता माँ बाप कि जड़ा पढ़दा नहीं ना, जड़ा क्लास विच सारा पीछे बहंदा तू ओदे नाल दोस्ती करनी। देखो इन्फ्लुएंस जो है ना वो करता है, सही है। इन्फ्लुएंस आप शुरू से होते हो, आपने टिकटॉक पे भी वीडियोस देखी होंगी या दूसरे और मीडिया चैनल्स जो भी हैं ये आपने देखे होंगे। वो बच्चा छोटा सा, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट बाकायदा किया गया था, क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट है ये, और वो दिखाया था उन्होंने कि व्हाट इफेक्ट अ मदर कैन हैव ऑन अ न्यू बॉर्न। वो न्यू बॉर्न है, वो लेटा हुआ है, तो माँ आ रही है, उसको सीरियस होकर देखी जा रही, तो बच्चा रोने लग गया, ठीक है। कुछ देर बाद माँ आई है, न्यू बॉर्न मतलब नया, जहाँ पे बच्चा माँ को परेशान था, तो आके उसको मुस्कुरा के देखना शुरू किया, तो बच्चा हंसना शुरू हो गया, सही है। तो आप इन्फ्लुएंस होते हो अपनी एनवायरनमेंट से, ठीक है। आज तो बातें बड़ी अच्छी ठीक है, निकल रही हैं। तो बच्चे देखे हालात चेंज होते रहते हैं, हमारे घर के भी हुए हैं, दुनिया में हर किसी के हुए होंगे, दुनिया का अमीर तरीन बंदा उसके होंगे, वो प्रेसिडेंट हो, जनरल हो, हर किसी के हालात चेंज होते हैं, गुड और बैड टाइम तो चलता है ना। उसका इफेक्ट बच्चों पे कहीं ना कहीं आ जाता है। पेरेंट्स जितनी भी कोशिश कर लें, वो परेशानी उनके चेहरे पे आ जाती है और बच्चे उसको पिक कर लेते हैं, ठीक है। तो एज पेरेंट्स मेरे ख्याल में कोशिश ये करनी चाहिए कि आप हर उस चीज को एलिमिनेट करें जिससे आपको स्ट्रेस या टेंशन हो रही है, और आप ताकि आप अपने जो अपनी हेल्थ है उसको इम्प्रूव करें, आपके चेहरे पे स्माइल रहे, आपके फाइनेंशियल हालात अच्छे हों,
और आपके बच्चे जो हैं वो भी हैप्पी रहें। पर ऐसे ये होता नहीं ना। कोशिश करनी चाहिए। पर जब आप किसी स्ट्रेस में होते हैं ना, टेंशन में होते हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग अगर Affect आपको होते हैं। कहें भी ना, वो भी इफेक्ट होते हैं। अगर वो आपको कहें भी कि आप ना सोचे, पर वो जिस बंदे के ऊपर उस टाइम वो जिस सोच में गुस्सा होता है ना, ओदे वास्ते बड़ा मुश्किल है अपने आप को। कॉलेज में होता है top priority in life should be your health. हेल्थ, हाँ No matter what stage of life you are, whether बिल्कुल। you are young or young, when you're young, you don't realize. पर मैंने इस चीज को काफी इग्नोर But as किया। you get older and older, you should give top priority to your health. ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਨ young ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਸੀ ਅਸੀਂ ਜੋ young ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ health is wealth. ਹਾਂ, health is ਲੇਕਿਨ wealth। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਹੈ Yes. ਵੈਲਥ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੌਲਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣੇ। So, ਬੰਦਾ you know, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ Yeah. ਨੋਟ ਕਿਸ ਦੇ ਨਿਕਲਣੇ। so when you cross the half century, and then after that, slightly you start to realize, yes, health, I have to look after it. Top priority. ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜੌਬ ਜਰਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ, ਆਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। And the example is this thing, like if you go to the shops, ਹੁਣ ਤੇ by law you have to have a ramp and stairs, you see. ਹਾਂ So a lot of people, I know a person, he's 90 years old and his wife is about 5 years younger. They never take a lift. They always go by the stairs. Why? To get the exercise. Every opportunity, what they do is the exercise to keep themselves healthy. ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤੋਂ। ਤੇ ਅੰਮੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਪੈਦਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਘਿਓ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਨੀਆਂ ਖਵਾਉਣੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਇੰਨੀ ਵੋਕ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੋਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਾਏਗਾ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ, ਰੋਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਤੇ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌਲਤ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਤੇ ਉਹ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? It's useless. ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਵਾ ਲਓ ਫਿਰ। So okay, you have to balance the job that you're gonna do or the work that you're gonna do. जो ਤੁਹਾਡੀ earning है, you have to balance between that, your job and your health. You have to balance between the two. And do another one thing. Always do the job that you enjoy it. Yes. You will never be able. You'll never be successful in any job, employment which you do not enjoy. ये अपना भी बिजनेस है, अगर आपका अपना भी है, अगर आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे, आप स्टार्ट ही वो करते हो जिसको आप एंजॉय करते हो। किसी को because then that becomes your like second nature. It's not a job because you enjoy doing it. You're just doing it. You're working it, and the benefit is the remuneration that you get. क्योंकि अगर आपने इतना प्रेशर है ना, आप किसी प्रेशर में आके वो काम कर रहे हो कि नहीं है मैंने करना ही पैना, मेरे को और कोई चॉइस ही नहीं है, तो फिर तो आपकी सेहत भी खराब होगी। Exactly, आप 24 आवर्स आप सोए हो जी मैंने सुबह उठ के काम पे जाना है, काम ते हुन केड़े वेले छुट्टी होए ते मैं घर जावां। एग्जांपल दूर है ही नहीं है। Stress. हाँ, आपके ऊपर फिट है। हले लोग कहते ने आपके हस्बैंड काम नहीं करते, इन्ना दे काम करते। Stress is the worst thing one can have in one's life, and stress is a silent killer. मेरे ख्याल में मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ तभी ठीक नहीं हो रहा। Stress is a silent killer because no matter where you go, whether you're walking, you're sitting on a chair, you're sitting on a throne, the stress is always there. So you have to make changes in your life to get rid of stress. And the only way to do that is do the work that you enjoy naturally, because that you will find joy, no stress free. ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿੰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਜ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, सोते होंगे कि नहीं? जिस दिन बनूंगा कि सारी रात अपनी कुर्सी पे बैठे रहते हैं। जिस दिन बनूंगा इंटरव्यू दे दूंगा।
चले जी चले। मेरे ख्याल में अब हाँ करते हैं अब जी। बंद करते हैं। ये थी अब्बू जी के साथ हमारी कुछ बातें, और बड़ी जो है नसीहत वाली बातें हैं। तो बैठा करें अपने बड़ों के साथ, कुछ टाइम स्पेंड किया करें, क्योंकि तानू आप ही नहीं इस करनी वक्त होगी वो सब। चारों बच्चे माशाल्लाह स्कूल है तो आराम से बैठ के बात हो सकती थी, तो अब करते हैं जी। अब चाय तो पी ली, अब करते हैं नाश्ता। हाँ जी। तो अबू भी ने तैयारी पकड़ ली है वापस जाने की। हमने बड़ा कोशिश किया है इनको रोकने के लिए, और पर कहते हैं नहीं वापस जाना है अब। रुकते ही नहीं, रोज गड्डी ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਈਦਾ। और ये कहते हैं जी मेरे शहर में मेरी यादों में गमगीन कोई और भी है। अभी लौटने दो, हम फिर आएंगे वापस दोबारा रौनकों के साथ। ये लो। चलिए जी अलविदा करें इनको। ये थी अब्बू जी के साथ कुछ बातें। तो मैं कह रही थी बैठा करें अपने पेरेंट्स के साथ, कुछ सीखें तो बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। जो एडवाइस इन्होंने आपको देनी है ना, वो किसी ने नहीं देनी, क्योंकि इनको कोई लालच नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल खालिस एडवाइस मिलेगी। ਤੇ ਨਾ ਐਡਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ कोई खैर ख्वाह नहीं ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कोई और हो सकता है अपने माँ बाप के अलावा और अपने बहन भाइयों के अलावा। तो बैठा करें, टाइम स्पेंड किया करें, जो भी गिले शिकवे हैं उनको खत्म करें। और है ना जी आप थोड़ा कम बोला करें। अबू जी आप अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? आपको अबू जी कहते हैं, शॉप्स पे भी जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आप अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? अब्बू जी गए मेरे साथ चाय वाला पे, तो वो चाय वाला वाली लड़की ने इनको कहा, जैसे बड़ी ही nice- एंटर बड़ी हुए, nice बड़ी lady है नाइस है वो, वो। बड़ी अच्छी जैसे ही एंटर हुए तो उसने कहा कैसी है अब्बू जी? अब्बू जी तो साढ़े शॉक्ड हो गए कि ये मुझे कैसे जानते हैं? तो चले अब बोलेंगे हमारे अब्बू जी। बोलो जी। Oh, thank you very much for supporting the channel and giving so much respect to me. And I wish you all good luck and happy life. अबू जी शुक्रिया। तर्जुमा भी करते हैं थोड़ा सा। हाँ हुन उर्दू ਵਿੱਚ बोलो ना। हमारे I'm more it's easy for me to speak in English. आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और well भूल गए। आप सबका शुक्रिया जिन्होंने अबू जी को पसंद किया और इस चैनल को आप देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो उसके लिए अबू थैंक यू कह रहे हैं सबको। तो बहुत शुक्रिया जी। तो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भूख लग गई सब। ये देखें जी अब्बू जी जा रहे हैं, आज खैर से जाएं इंशाल्लाह। बच्चे सुबह सुबह जो है, बच्चों ने रात को ही मिल लिया था दादा अब्बू को सुबह स्कूल से, क्योंकि अब्बू सुबह उठते हैं लेट। ते खैर नाल जान इंशाल्लाह। थैंक यू अब्बू जी आने का, ते थैंक यू फॉर एवरीथिंग एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। ते बस आया जाया करो, ध्यान रखा करो अपना, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ इंशाल्लाह चक्कर। इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़। ना जो फोन कर देंगे पहुंच के, या मैसेज कर देना। बच्चियां ने आके लबने आंदा दादा अब्बू चले गए हैं। उनको पता है मैं जा रहा हूँ, आपको मिल लिया था। अल्लाह दे वाले तो हो गया है ना। अब्बू जी खैर मैं अपनी गड्डी पीछे कर दी हूं, हैं कट लोगे? अरे वाह माशाल्लाह। अबू तो हमने भी शुरू में अबू ने सिखाई थी गाड़ी हमें। बिल्कुल। अब वो जीपीएस कितना पुराना है? अच्छा ब्लूटूथ से। आपने तो गाड़ी भी अपडेट की, गड्डी अपडेट की थी। फोन मेरा अंदर तुझे जरा थी मोटर में तो पहुंचो, मैं तुम्हें फोन करा चेक करने वास्ते कि ਤੁਹਾਡੀ ब्लूटूथ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। चलो अल्लाह दे वाले ओके।